A very good evening to everyone. Warm welcome to our distinguished guest and all participants. हमारे विशिष्ट अतिथि और सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है. I, Parul Upreti, working as Manager Communication and Publication here at Jal Jivika, will be hosting this Aquatalk session for you all. This year, General Assembly of United Nations with FAO proclaimed 2022 as International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture. This year will be an opportunity to celebrate the diversity of small-scale artisanal fisheries and aquaculture, highlighting the related innovation and to build and strengthen support and partnerships at all levels. इस वर्ष FAO के साथ संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2022 को लघु स्तरीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है. यह वर्ष संबंधित नवाचार को उजागर करने वाले लघु स्तरीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि की विविधता का जश्न मनाने का अवसर होगा और सभी स्तरों पर समर्थन और भागीदारी का निर्माण और मजबूती करने का. The theme of this Aquatalk session is the same. Now, I would like to talk about our organization. Jal Jivika was established in the year of 2013 as non-profit organization. It is a registered social enterprise committed to the promotion of aquatic livelihood, securing food and nutritional security in rural India. The very essence of Jal Jivika lies in creating employment opportunities in the fishery sector so as to reduce pressure on land as a resource. Jal Jivika has worked across different Indian states with more than 25,000 fish farmers to adopt better management system. Makhana is considered as the potential aquatic cash crop, especially in the state of Bihar. It is suitable to tropical climate of India. It is the most common dry fruit due to its high carbohydrate, calcium content, and low fat. It also finds lot of medicinal use in Ayurveda and Unani system of medicine. Today, in this Aquatalk session, we have with us distinguished guest, Dr. Shailendra Raut sir, who will be covering all the details about Makhana cultivation and its scope. He is presently working as scientist in ICAR Research Center for Makhana, Darbhanga, Bihar. I welcome you, sir. And Thank I you. now would request you to share your experience and knowledge on the same. Welcome, sir. Over to you. Thank you, madam, for a very good and lovely introduction about Makhana and about my that Makhana cultivation area also. So I'm Shailendra Rao. I'm working as a scientist in Indian Council of Agriculture Research Center for Makhana, Darbhanga. And as the occasion of International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture 2022, the Jal Jivika give me opportunity, the virtual opportunity to deliberate the information about the Makhana on a virtual mode. Thank you, Jal Jivika. So all of you know about Makhana, but before that, I need to inform you about another microphytes like water-loving microphytes, maybe water chestnut. It is also present in a waterlogged area through whole out Indian inland condition. Another thing is lotus. Lotus also very important. But Makhana, particularly Makhana cultivation, it is found only in another part of Bihar. It was present in some part of UP, Jammu Kashmir, in MP also, and the northeastern state of India. But as a pop form of the Makhana,
So particularly makhana production is mainly happening in northern part of Bihar, and now it is spread in Chhattisgarh also, Chhattisgarh, MP. So many farmers, they are interested to cultivate it because of they have high market value and nutritional qualities. And some northern state, some northeastern state like Manipur, Mizoram, they are directly consumed on makhana fruits. So there is cultivated, but not that much. Means commercial cultivation, not that much. But in northern part of Bihar, means about 80, more than 80% of makhana cultivation is happening in northern part of Bihar only. It's particularly some district like Darbhanga, Purnia, Samastipur, Madhubani. So these districts are very potential to cultivation of makhana, and within that the Darbhanga is situated. So in Darbhanga already we have one research station, makhana research station. So they have one aim to extension of the makhana crop, their technologies, varieties, and a nutritional package, how to value addition. So these all things are in scientifically we are managed through this institute. So first एक्सक्यूज of मी all, सर, yes, हिंदी में करिए सर। हाँ, ओके ओके। तो सभी फार्मर लोग अभी जुड़े हुए हैं शायद जी। ओके। तो मखाना का जो है, मखाना ज्यादातर हमारे पहले कैसे होता था कि मखाना ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलता था, कि जैसे कि चाइना में, जापान में। लेकिन अभी जापान में क्या हो गया है कि मखाना अभी इंडेंजर्ड कंडीशन में आ गया है, और होल नॉर्थ इंडिया में भी मखाना मिलता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, या हम बोल सकते हैं कि जल की कमी के कारण अभी मखाना खाली गंगा के ऊपर का जो भाग है बिहार में, तो वहीं तक अभी सीमित है। इसलिए 80% ऑफ जो मखाना प्रोडक्शन है अभी वो बिहार में हो रहा है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए कि मखाना जो है ये क्यों हम सुपर फूड कहते हैं, क्योंकि मखाना में जो न्यूट्रिशन क्वालिटीज हैं और उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है और डोमेस्टिक भी डिमांड जो हाई है। अभी देखिए कि इन मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या डोमेस्टिक मार्केटिंग सिस्टम में ये जो मखाना है अभी ज्यादा से ज्यादा और विविध प्रकार के ब्रांड में अभी वो बिक रहा है। मखाना, मिथिला मखाना, डायमंड गोल्ड और वेदिका, सुपर पॉप्स। तो ये अभी मखाना जो पॉप के फॉर्म में भी बिक रहा है और फ्लोर के फॉर्म में भी बिक रहा है। और इससे कुछ भी जो वैल्यू एडिशन अभी होने वाला है, जैसे बिस्किट्स है, इसके साथ हम बिस्किट भी बना सकते हैं। आइसक्रीम का जो पफिंग रहता है उसके लिए भी अभी वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया बहुत सारे यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं वो कर रहे हैं। अब हम इसको सुपर फूड क्यों कहते हैं? मैडम नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, क्योंकि देखिए मखाना जो पॉप मखाना है, हाँ, वहां देखिए कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है। जैसे कि हम देख सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट देखिए अप्रोक्सीमेटली 80% प्रोटीन है, अप्रोक्सीमेटली 9%। और जो न्यूट्रिशन है इसको हम बोल सकते हैं मिनरल्स, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, ये सारे जो पैकेज है में मिल रहे हैं हमको, कि एक ही फूड प्रोडक्ट में हमको ये सारे सभी गुणधर्म मिल रहे हैं जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और हमारा जो मिनरल रिक्वायरमेंट ये पूरा ये करता है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ज्यादातर इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में बनते नहीं, हमको दूसरे से लेना पड़ता है। तो उसके लिए मखाना बहुत उपयुक्त है। कुछ एक दो छोड़ के इसेंशियल अमीनो एसिड, सभी अमीनो एसिड मतलब जो प्रोटीन में पाए जाते हैं अमीनो एसिड, जैसे कि हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन ये मछली में भी पाया जाता है, पर देखिए एकदम प्रचुर मात्रा में भी मखाना के पॉप में भी है। तो इसलिए ये जो मखाना जो पॉप है ये एक खुद में ही एक न्यूट्रिशनल पैकेज है। इसलिए इसका अभी हमारे इंडिया में इसको जियो टैग भी मिल गया है, खास
मिथिलांचल मखाना के लिए। और इसका जो कल्टीवेशन प्रक्रिया है, साइंटिफिक कल्टीवेशन प्रक्रिया है, हमारे संस्थान के तरफ से भी बहुत मॉडिफाइड किया गया है। तो मैडम नेक्स्ट स्लाइड कहीं। हाँ, देख लीजिए, जैसे पॉप फॉर्म में भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी है या कुछ हमारे कंट्री में कुछ स्टेट ऐसे है कि वो रॉ कंज्यूम भी करते हैं। और ये कुछ स्लाइड्स है, ये मणिपुर की स्लाइड्स है। आप मखाना का फ्रूट देख सकते हो। फ्रूट में छोटे छोटे बीज हैं कि उसको बीज तोड़ के, और जो अंदर का जो कर्नल और जो जिसको हम ग्लूकन बोलते हैं, उसका भी हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसका भी एक न्यूट्रिशनल महत्व है, साथ ही साथ पॉप के साथ। मैडम नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ, इधर आप देख सकते हैं सेम न्यूट्रिशन क्वालिटी पॉप में भी और हमारे जो रॉ फूड मटेरियल है उसमें भी एज इक्वल है। खाली यहाँ मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा है, तो हम डायरेक्ट इसको कुक करके, मतलब उसको फोड़ के उसका जो ग्लूकन है कलेक्ट करके हम उसका हर एक मतलब सब्जी के साथ क्या उसको सब्जी बना के भी खा सकते हैं। तो ऐसा इसका मतलब मखाना हम रॉ के मतलब रॉ मखाना भी खा सकते हैं और उसका पॉप किया हुआ भी मखाना खा सकते हैं। लेकिन इस दोनों में यही अंतराल है कि मखाना का पॉप जो बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत टीडियस और लेबरियस है। और मखाना का सीड जो है, जो कुछ स्टेट में इसका कंज्यूम करते हैं, तो उसके उनके डिफरेंट डिशेस है, वो अपने डिफरेंट डिशेस में डालते हैं और उसको मेन जो इंग्रेडिएंट है उसके साथ वो कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। तो और देखिए, मखाना जो है, मखाना इतना इम्पोर्टेंट है और इसको इसीलिए इसको जो आयुर्वेदिक लिटरेचर है हमारे इंडिया में, तो उसमें भी इसका मतलब उसका गुणवत्ता उसमें दर्शाए गए हैं। क्योंकि ये जो मखाना है जो वो एनालिस्टिक है एंड एफ्रोडियास्टिक है, मतलब एकदम पीड़ानाशक, और हमारे शरीर के जो जितनी भी जो कमजोरता होती है तो उसके लिए भी वो मतलब बड़ी फायदेमंद की चीज है। इसके साथ ही कुछ इंटरनल ट्रीटमेंट, जैसे कि मतलब जितने भी डॉक्टर लोग वगैरह हैं, वो हमें सजेस्ट भी करते हैं कि एटलीस्ट मखाना खाना चाहिए दिन में थोड़ा सा 50 ग्राम 40 ग्राम, कि जो आपका अक्यूट हो या क्रोनिक हो, कोई भी डिसीज हो, जैसे डायरिया और कुछ डिस्चार्जेस, कुछ वीकनेस और कुछ अनवांटेड इमिशन या कुछ भी चीज हो, डायबिटीज से रिलेटेड भी हो, तो ये सारी चीजें हम मखाना खा के, मतलब जिसके डाइट में मखाना है, तो ये सारी चीजें उनके लिए थोड़ा मतलब पॉसिबिलिटी कम है कि ये सारी चीजें उनको हो। तो इसलिए ये एक महत्व है, आयुर्वेद में महत्व है, हमारे जीवन जो चक्र है उसमें भी उसका महत्व है। तो इसलिए मखाना एक सुपर फूड की तरह है। ओके, और कोई लोग इसको ब्लैक डायमंड की तरह भी देखते हैं और ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं। तो इस तरह हम मखाना को कल्टीवेशन करके ये सारी चीजों के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। मैडम नेक्स्ट स्लाइड देखिए। देखिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, आपको मतलब अगर वैल्यू एडिशन भी करना है मार्केट में, तो आप कुछ जैसे चीजें हैं, या थोड़ा गेहूं का फ्लोर मिला के, मखाना का फ्लोर मिला के उसका चपाती मतलब उसका जो फ्लोर है उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके कुछ मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, कुछ शॉर्ट फूडेड का कुछ पकौड़े वगैरह भी बना सकते हैं। इवन हम मखाना बर्फी, ये कुछ प्रोडक्ट है, ये हमारे संस्थान के प्रोडक्ट डेवलप किए प्रोडक्ट हैं। और ये जो प्रोडक्ट कोई कंपनियां हैं जो यहाँ से फार्मूला लेके वो अपने तरफ से उसका मास स्केल में प्रोडक्शन करते हैं। पर ज्यादातर लोगों को स्नैक इन द फॉर्म ऑफ स्नैक मखाना दे लाइक। ओके, तो मखाना ज्यादातर जो पॉप कंडीशन में है, मतलब वो थोड़ा सा स्नैक के लिए यूज बहुत अच्छे से करते हैं, और उसका इजीली ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण लोगों को वो प्रोक्योर करने में इजी होता है। तो इसलिए आप वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं घर के लिए भी और मार्केटिंग पर्पज के लिए। तो इस तरह यह फूड का भी हम मतलब यूज कर सकते हैं। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, हम थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि हम मखाना सुपर फूड क्यों कहते हैं। तो हमने आपको बता दिया है उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या है और वो कौन से फॉर्म में हमको मिलता है, और उसका वो दिखता, अभी हम देखेंगे उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कि मखाना दिखता कैसा है, मखाना रहता कहाँ है। एक्चुअली ये जो मखाना है
जहाँ रेन मतलब नेचुरली मखाना जहाँ मतलब बरसात, जहाँ बरसात के प्रमाण ज्यादा हो, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में होता है, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो वही क्षेत्र में मखाना पाया जाता है मतलब नेचुरली। और जहाँ टेम्परेचर 20 से लेकर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस है, वहां पाया जाता है। और ये जो इसका जीवन चक्र है, ये कैसा वार्षिक है, मतलब ये वी कैन आल्सो कॉल्ड एनुअल हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि ये जनवरी से स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट दिसंबर मतलब नवंबर दिसंबर तक इसका साइकिल जीवन चक्र है वो चलते रहता है। ये ज्यादातर झीलों में, ऑक्सबोलेक जो झील है, स्वयं मतलब जो दलदल वाला एरिया है, डिचेस यानी जहाँ दलदल और थोड़ा सा पानी है, उस एरिया में ये मखाना का पौधा पाया जाता है। मखाना का पौधा आप देखोगे तो कोई मतलब ऐसा हाथ भी नहीं लगा सकते, उसमें थोड़ा सा कांटेदार भी होते हैं, वो कांटे हमारे हाथ को भी चुभ सकते हैं ऐसे मतलब। और उसके लिए ये जो कल्टीवेशन करते हैं खास, जैसे कि बिहार में एक कम्युनिटी है, मल्ला कम्युनिटी, वो खास करके मल्ला कम्युनिटी लोग ये मखाना कल्टीवेशन करते हैं। मखाना के साथ साथ वो मछली पालन भी करते हैं। तो एक 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 ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया मखाना के बारे में। आप देख सकते हो साइड में कि मखाना देखो नदी नाले में भी वो दिख रहा है, किसी छोटे पॉन्ड में या किसी कैनल में। तो ऐसे भी मखाना का कल्टीवेशन होता है और लोग नेचुरली उसको कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह ये मखाना का पौधा होता है। नेक्स्ट स्लाइड, next slide. See, it is naturally found in Bihar, West Bengal, Assam, Manipur, Tripura, Madhya Pradesh. Now it is cultivated in Chhattisgarh. We can see here one of the makhana brand, Dauji. Dauji करके ये एक ब्रांड है। ये ब्रांड जो है खास करके छत्तीसगढ़ का ब्रांड है। सी, अभी मखाना मिल रहा है कहाँ? बिहार में। और बिहार में भी तो हो रहा है, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा प्रचलन भी इधर हमारे सेंट्रल इंडिया में भी हो रहा है। और एक अच्छी बात है कि सभी फार्मर लोग इसका अच्छे से यूज करके, इसका मतलब कल्टीवेशन करके अपना लाइवलीहुड ऑप्शन बना रहे हैं। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम देखेंगे इसका कल्टीवेशन किस किस तरह साइंटिफिकली हम करते हैं। पहले लोग ट्रेडिशनली करते थे। आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि एक नेचुरली एक वाटर लॉक्ड एरिया है, वहां ऑलरेडी मखाना का जो कल्टीवेशन है वो ज्यादातर लोग करते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली साइकिल से वहां हो जाता है। तो लोगों का खाली एक काम रहता है, वो पत्ते हटा के वहां से खाली सीड को कलेक्ट करके अपना उसके ऊपर उदर निर्वाह करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में, जैसे कि एक छोटी सी नौका है, उसके ऊपर कुछ लोग हैं जो जस्ट वो कलेक्ट कर रहे हैं। These are just naturally found in natural environment. They just simply collected that all seeds. Okay, madam, next slide. So here, so we are developed two scientific methods for मखाना cultivation. तो दो मेन इसके चीज है। देखिए, हम एक फील्ड में भी कर सकते हैं और हम एक किसी पोखरी किसी पॉन्ड में भी कर सकते हैं। अब जहां देखिए पानी की गहराई 1 मीटर से ज्यादा है, अब देखिए हम किसी भी ऑक्सबोलोग के ऐसे नहीं बोल सकते कि वहां से पानी निकाल के हम थोड़ा सा उसकी लेवल कम करें। अब जहां पानी 1 मीटर है या 1 मीटर से ज्यादा है, तो उसको एक पॉन्ड मेथड दिया गया है। और जहां की फील्ड मेथड में क्या होता है कि हम पानी का सोर्स जो रहता है, या बोरवेल या वेल है, वहां का मतलब पानी का सोर्स हम यूज करके फील्ड मेथड में भी कर सकते हैं। फील्ड मेथड में जो डेप्थ है, जैसे हमारा राइस फील्ड है, राइस जब हम करते हैं कल्टीवेशन मतलब चावल की खेती, उसमें ज्यादातर देखते हैं कि 0.3 मीटर उसका डेप्थ रहता है, हार्डली 2 से लेकर 3 फीट तक उसकी गहराई रहती है। तो हम इस दो जो इसकी मेथोडोलॉजी है, फील्ड मेथड और पॉन्ड मेथड, इन दोनों में हम मखाना कर सकते हैं। मैडम दूसरा स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो मखाना करते समय हमें कौन सी वैरायटी यूज करना चाहिए? देखिए, वाइल्ड वैसे भी देखा जाए तो आप जब कभी बिहार में देखिए कि ज्यादातर लोग वाइल्ड कंडीशन में जितना भी हम निकालते हैं मखाना का सीड, तो वही डायरेक्टली वो यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने एक फर्स्ट रिलीज वैरायटी है मखाना की, स्वर्ण वैदेही, जिसका जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है 2.8 to 3 टन पर हेक्टर, मतलब इतना प्रोडक्शन ले सकते हैं।
और एक दूसरा भी वैरायटी उसका नाम है सबोर मखाना 1। ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मतलब वैरायटी है। इसका पॉपिंग परसेंटेज इसका ज्यादा है, पर ज्यादातर इस सबोर मखाना 1 जो है वो एकदम ऊपरी हिस्सा जो है नॉर्थ बिहार का, जैसे पूर्णिया वगैरह जो एरिया है उसके लिए ये सुटेबल वैरायटी है। लेकिन बाकी के जो इंडियन क्षेत्र है वहां हम स्वर्ण वैदही लगा सकते हैं। तो ये दो वैरायटी है मखाने की वैरायटी। और ये और वही क्षेत्र में जैसे स्वर्ण वैदही का जो आपको सीड वगैरह चाहिए तो आप उसी संस्थान से आप कांटेक्ट करके आप इसका मतलब ले सकते हो। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। हाँ देखिए, जैसे कि आप सीड लाते हो किसी संस्थान से, आपका सीड है तो उसको थोड़ा सीड ट्रीटमेंट की एक प्रोसीजर है। इसमें आप कुछ ऑर्गेनिक कुछ फर्टिलाइजर्स है, जैसे नीम का तेल है, ट्राइकोडर्मा है, उसको थोड़ा सा मिक्स करके आप इसको दे सकते हो। अदरवाइज कुछ नीम का केक भी होता है। अब आपको जब फील्ड प्रिपरेशन करना है तो उसमें आप नीम का केक डाल के उसको मिक्स करके मिट्टी के साथ वो भी कर सकते हो, जिससे आपका जो गुणवत्ता जो है मतलब जर्मिनेशन की गुणवत्ता है तो वो बढ़ेगा और अच्छे से बढ़ेगा। और जो परसेंटेज है जर्मिनेशन परसेंटेज वो भी अच्छे से होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सीड ट्रीटमेंट भी किए तो इससे भी आप लोगों को फायदा हो सकता है। नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए अभी हमें नर्सरी भी बनाना है। जैसे सीड का अभी हमने ये कर लिया, उसको ट्रीटमेंट दे दिया। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद हमें नर्सरी राइजिंग करना है। नर्सरी में आप स्लाइड में देख सकते हो, इसमें फोटो में देख सकते हो, जितने भी हमारे जमीन में जो घास है, घास को निकाल के हमको क्लीन करना है, उसमें पानी भरना है। और ज्यादातर वहां देखिए कि हमारा पेड़ बड़ा ना हो। हमने रिकमेंडेड किया है 5 से लेकर 600 मीटर स्क्वायर का एक एरिया होना चाहिए, जिसकी गहराई 3 फीट हो। उसमें थोड़ा सा घास वगैरह निकाल के उसमें थोड़ा फर्टिलाइजर डाल के, या अगर आपके पास कंपोस्ट फर्टिलाइजर तो वो कंपोस्ट फर्टिलाइजर डाल के भी उस सॉइल को थोड़ा सा सुपीकता बढ़ा के उस सॉइल में आप डायरेक्ट सीड को ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। अब ये जो वहां पानी, लेकिन यहाँ देखना जरूरी है कि वाटर लेवल हमेशा मेंटेन होना चाहिए कि 2 फीट पानी है तो एकदम लास्ट इंच तक, क्योंकि ये एक्वेटिक माइक्रोफाइट है, मतलब एक्वेटिक प्लांट है, इसको पानी की बहुत जरूरत होती है। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि पानी उसमें हमेशा होना चाहिए। जब तक कि उसका फ्रूट आता नहीं है, फ्रूट ब्रॉडकास्ट होता नहीं है, तब तक के लिए हमको पानी वहां मतलब रहना ही चाहिए। अब देखिए 1 हेक्टेयर एरिया में लगभग 20 किलोग्राम सीड सफिशिएंट है। और वही आप 500 मीटर स्क्वायर के नर्सरी में इसको रख सकते हो। और ये जो नर्सरी हम कब करते हैं, हम ये ज्यादातर नर्सरी जो है दिसंबर और जनवरी के में जस्ट ठंडी जस्ट खत्म हो रही होती है, तो उसी दौरान हम इसकी नर्सरी जो है वो नर्सरी हम मतलब लगा सकते हैं मखाना की। और देखिए अगर हम दिसंबर टू जनवरी करते तो हमको मार्च अप्रैल तक इसका जो है सीडलिंग मतलब जो छोटे छोटे प्लांट रहते हैं, तो वो जो प्लांट वो बड़े हो जाते हैं उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। और वो सीडलिंग बड़े होने मतलब मार्च अप्रैल तक, देखिए इसको 2 से 2.5 महीना लगता है खाली जर्मिनेशन होने के लिए, 1 महीना थोड़ा सा इसको बढ़ने के लिए। तो इसलिए तो ये एक इसका लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो इसलिए हमें कभी भी स्टार्ट जो करना है तो अर्ली दिसंबर भी किए तभी चलता है। और जैसे हम देख सकते हैं कि जो सैपलिंग है, अब सैपलिंग का हमको अगर ट्रांसप्लांटिंग करना है तो लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस है वो 1.25 मीटर मतलब 1.25 मीटर के अंतराल में हम ये मतलब डिस्टेंस रख के उसको हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, आप देख सकते हो नर्सरी पॉन्ड देख सकते हो, ये एक 500 मीटर स्क्वायर का एक नर्सरी पॉन्ड है। और इसमें जो लाल कलर के जो पत्ते दिख रहे हैं यही मखाना के पौधे हैं। और ये पानी का लेवल जो है ये हमको बढ़ाते ही रहना है, हमेशा बढ़ाते रहना है। और फिर ये जो लाल पत्ते हैं जब हरे कलर के हो जाते हैं
और हरे कलर होने के बाद उसका जब डायमीटर 10 सेंटीमीटर से आगे हो जाता है तब वो ट्रांसप्लांट हेतु उपयुक्त होते हैं। आप जैसे आप इधर स्लाइड में भी देख सकते हो कि छोटे छोटे पॉन्ड भी हैं, कि उससे भी मतलब छोटे छोटे पॉन्ड में भी आप मखाना का सीड ब्रॉडकास्ट करके उसमें भी आप मखाना की सीडलिंग मतलब तैयार कर सकते हो। ये सीडलिंग तैयार होने के बाद आप मेन जो फील्ड होता है, मैडम नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये जो मेन फील्ड है, अब इस मेन फील्ड में आप 1.25 मीटर के अंतर में आप जितने भी हैं तो वो उसका ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। और लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा सा जो हमारे जो कुछ अगर अगर मिट्टी की क्वालिटी ठीक ठाक रही, अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अगर ये चीजें कम रही तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ये मिट्टी की क्वालिटी में ये चीज नहीं है तो आप थोड़ी सी मिट्टी की थोड़ी सी जांच करवा लीजिए और उसके हिसाब से नाइट्रोजन कितना देना है, फास्फोरस कितना देना है, पोटेशियम कितना है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। विदाउट मिट्टी की जांच आप बाकी के केमिकल फर्टिलाइज यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप वर्मी कंपोस्ट है या फार्म यार्ड मैन्योर है या काउडंग है, इसका आप ज्यादा से ज्यादा अगर यूज करोगे तो अच्छा है, क्योंकि मखाना के प्लांट को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए, तो उससे उसका पत्ता भी बड़ा होता है, उसका फ्रूट भी बड़ा होता है और फ्लावरिंग स्टेज भी अच्छी होती है। ना कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ थोड़ा सा कम ही ध्यान दिए तो भी चलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक जो हमारे कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स हैं, यू कैन यूज इट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फील्ड। देखिए, तो आपके पास काउडंग एक अच्छा विकल्प है, दूसरा है कंपोस्ट मैन्योर, दूसरा है फार्म यार्ड मैन्योर, और इसके साथ ही नीम का केक जो मैंने प्रीवियसली हमने बताया था आपको कि ये सारी चीजें हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं बिफोर प्लांटेशन। आपको सॉइल में थोड़ा सा मिक्स करना है, उसको कंडीशनिंग के लिए रखना है, फिर पानी भरना है, फिर कुछ दिन के बाद वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए मतलब यूज हो सकता है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, जो मखाना का जो प्लांट है, जो वेजिटेटिव स्टेट है, आप स्लाइड में देख सकते हो कि वेजिटेटिव स्टेट में ये जो मखाना का प्लांट है ये इस तरह होता है उसका, तो आप इसको डायरेक्टली लेके आप मेन फील्ड में उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब मखाना बड़ा होने लगता है तो उसमें फ्लावरिंग आता है, और उसके फ्लावरिंग आने के बाद उसमें पॉलिनेशन की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पॉलिनेशन के समय मखाना का फूल ये ऊपर होता है, फिर इवनिंग के बाद ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी दिखने को मिलता है कि उसके फूल जो हैं वो थोड़ा सा मुरझाए जाते हैं। तो इसके लिए हमें बीच बीच में अगर ये सारी कंडीशन हो, फूलों की कमी या फूल कम हो जाना, या जो हमारा पत्ता है वो पीला पीला होने लगता है, तो इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट यानी जिंक या बोरॉन या कॉपर इनका स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रेंट है। जब तक अगर डिफिशियंसी रही प्लांट में, तो ये जो प्लांट्स हैं आपको एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये नहीं लेंगे। तो इसीलिए हम ये भी रिकमेंडेड करते हैं कि जो आपके पास एक थोड़ा माइक्रो न्यूट्रेंट का एक स्प्रे होना चाहिए। जैसे कुछ प्रॉब्लम आए फूलों में या उसके पत्तों में, ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, जहाँ कंपोस्ट या जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज सबसे हाई है सॉइल में, तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हो गई। तो इसीलिए आप जिंक या बोरान या कॉपर मिश्रित कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट का आप यूज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, इसमें मैनेजमेंट कैसा करना है। एक बार मखाना का पौधा लग गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ दें, इसमें बहुत सारी जटिल प्रक्रिया है। आप देख सकते हो फोटो में कुछ लोग हैं कि वो मतलब माइक्रोफाइट निकाल अनवांटेड, इसमें 3 से 4 बार आपको जो अनवांटेड माइक्रोफाइट मतलब जैसे इधर बोलते हैं जलकुंभी बोलते हैं, हाइड्रेला बोलते हैं, ये सारी चीजें निकालना बहुत जरूरी होती है, नहीं तो ये ऑक्युपाई कर लेगी मखाना के आसपास और आपका मखाना का जो मतलब पत्ता है वो बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए बीज भी सबसे ज्यादा होता है हाइड्रेला ज्यादा हो गया तो पत्तों में भी और उसके जो रहता है उसमें वो
रैप हो जाता है, मतलब उसको ग्रो नहीं होने देता है। तो इसलिए बीच बीच में उसके मतलब इकोनिया है, मतलब जलकुंभी है, और ये जो हाइड्रिला है, इसका मतलब निकालना बहुत जरूरी होता है। और वाटर अवेलेबिलिटी तो रखनी है, उतना फिट पानी तो होना ही चाहिए। और अगर इसमें सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव होता है कभी कभी मतलब एफिड का, एफिड ज्यादातर दिखता है स्टार्टिंग फेज पे, तो हम नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक है। और कोई भी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का मतलब यूज कम ही करो तो ठीक है। हमारे जितने भी ऑर्गेनिक का हम कुछ फर्टिलाइजर्स है या मतलब कुछ स्प्रेइंग आइटम है इंसेक्टिसाइड, तो ऑर्गेनिक ही आप यूज कीजिए। जैसे कि नीम ऑयल एक अच्छा बेहतरीन होता है कि कोई भी जिस मखाना के ऊपर कुछ भी एफिड वगैरह लगा है तो उसको निकालने के लिए। मैडम नेक्स्ट देखिए, अभी ये नेक्स्ट स्टेज है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ये विंटर सीजन आने के पहले, मतलब विंटर सीजन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप जनवरी टू मार्च उसका मतलब जर्मिनेशन, ट्रांसप्लांटेशन मई में हो जाता है। फिर उसके दो महीने के बाद उसमें फ्लावरिंग आ जाता है। फिर उसके बाद फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फिर होते होते एकदम अगस्त सितंबर अक्टूबर आते आते उसका हार्वेस्टिंग का फेज आ जाता है। तो इस हार्वेस्टिंग के फेज में लोग ट्रेडिशनली ही यूज करते हैं जो मखाना का जो फ्लावर है, फ्लावर से फ्रूट होने के बाद फ्रूट वो बर्स्ट हो जाता है, बड़ा होने के बाद वो बर्स्ट हो जाता है। एक मखाना के फ्रूट में आप देख सकते हो 50 से लेकर 200 इतने बीज रहते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं कि आपके सॉइल में क्या कंटेंट है, आपका वाटर डेप्थ कैसा है, और आपकी वैरायटी आप कौन सी यूज कर सकते हो। देखिए 50 से लेकर 200 सीड पर फ्रूट, इतना उसकी कैपेसिटी होती है। कभी कभी उसका 30 भी रहता है, लेकिन 50 से ज्यादा ही रहता है मैक्सिमम। अब देख सकते हैं आप फोटोग्राफ में, जब फ्रूट बर्स्ट हो जाता है तो उसमें वो 2-3 दिन वो तैरते रहता है, उसके बाद वो सेटल हो जाता है बॉटम के ऊपर। तो बॉटम के ऊपर जब वो सेटल हो जाता है वो काला कलर का दिखने लगता है। तो आप ये देख सकते हो ये काला कलर का मखाना का सीड है। अब इसको ट्रेडिशनली यहाँ हम निकालते हैं। इसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, जैसे कि स्क्यूबा डाइविंग। स्क्यूबा डाइविंग के जो कपड़े हैं वो पहन के भी हम पॉन्ड सिस्टम में सीड निकाल सकते हैं। और दूसरा है ऑक्सीजन का सिलेंडर फ्लोटर में लगा के, और स्क्यूबा मींस इंटरनल जो सीड है उसको निकालने के लिए वो वाले भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो सहनी कम्युनिटी है या मल्ला कम्युनिटी है बिहार में, तो ट्रेडिशनली ही जो गांजा बना के, गांजा मतलब एक बास्केट है, बास्केट मतलब इसको हम कह सकते हैं कि एक बांबू का एक स्ट्रक्चर, गोलाकार स्ट्रक्चर, इसको मिट्टी में डाल के और उसको मिट्टी को हिला के, हाँ, क्योंकि वो मिट्टी में मिक्स होता है, ऊपरी जो सतह रहती है जमीन की उसमें वो मिक्स हो जाता है, और उसको थोड़ा सा हलाते हुए वो जितने भी सीड है हम वो उसको निकाल सकते हैं गांजा की मदद से। मतलब ये एक बाम्बू स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए भी थोड़ा सा स्किलफुल लोग होना चाहिए, और वो रहते भी हैं, और वो लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पूरा जो जॉब है ये खाली विंटर सीजन आते ही या विद इन द विंटर सीजन ये होता है, इसलिए थोड़ा सा टीडियस जॉब है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखिए ये एक एनुअल हेटेरोफाइट होने के एनुअल हेटेरोफाइट तो है, तो इसका सीड भी हम खुले वातावरण मतलब ओपन एनवायरनमेंट में नहीं रख सकते। ये जो सीड है जैसे पानी से निकाले तो पानी में ही रखना है, ये ध्यान देना है, तभी इसका 1 से 2 साल तक हम उसको रख सकते हैं किसी। तो इसके लिए आप स्टोरेज टैंक आप देख सकते हो कि पानी, ये जो डेप्थ है लगभग 2 मीटर के डेप्थ होना चाहिए। मतलब आप किसी पानी वाले स्ट्रक्चर में, किसी पॉन्ड में भी रख सकते हो, या सीमेंटेड स्ट्रक्चर ये खूब अच्छा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, और इसके लिए ज्यादा मतलब पानी इवोपरेशन भी नहीं होता है। तो इसलिए हम इसमें 1 से 2 साल तक हम इसको रख सकते हैं। अगर हमारे उपयोगिता के अनुसार इसको निकाल के हम हमारा पॉपिंग वाला, या हम किसी को ट्रेडिंग बेचना वगैरह है, ये सारी चीज कर सकते हैं। तो हमेशा यही बात ध्यान में रखना है कि मखाना का जो सीड है वो ओपन एनवायरनमेंट में ना रहे,
उसको अच्छे से बांध के एक बोरी में उसको पानी में ही रखना चाहिए। तो देखिए, तो ये एकदम प्रोसेस है उसका, कल्टीवेशन से लेकर उसको निकालना, उसका स्टोरेज। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए, अभी पॉपिंग मेथड कैसे होते हैं, मतलब पॉपिंग कैसे करते हैं, ये भी चीज ट्रेडिशनल हम बता सके, क्योंकि अब जो इंटरनेशनल आर्टिsanal फिशरीज तक चल रहा है, तो यहाँ भी एक ट्रेडिशनल मेथड है जो एकदम पुराने काल से प्रचलित है, उसको पॉपिंग करने की प्रक्रिया। तो ट्रेडिशनल क्या होता है कि ये मखाना का सीड है, जैसे हमने स्टोरेज टैंक में रखा है, जब हमें जरूरत हो तब उस पॉपिंग वो सीड निकालना है और इसको खाली ड्राई करना है, कंकड़ पत्थर ना हो, और कंगन पत्थर ना हो, अच्छे से सूख जाए, मिट्टी ना हो, मिट्टी की परत ना हो, और बाकी के भी मिक्स हो जाते हैं, जैसे कुछ छोटे छोटे गैस्ट्रोपोड रहते हैं, गैस्ट्रोपोड या स्नेल्स वगैरह रहते हैं, उसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके बाद उसको ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग ये होती है, 11 तरह की ग्रेडिंग होती है। मतलब इसका जो बीज है, बीज 5 mm से लेकर एकदम 12 mm तक, मतलब एकदम छोटा से बीज से लेकर 12 mm तक उसका मतलब रेंज है। तो इस रेंज में 11 उसको क्लासिफाइड किया हुआ लोगों ने पॉप के हिसाब से। तो कौन से सीड में अच्छा पॉप कौन सा होगा, बड़े सीड में पॉप कैसा होगा, तो उस ग्रेडिंग के हिसाब से आप देख सकते हो। उस फोटो में हर एक महिला के पास एक ग्रेडर है, वो ग्रेडर से देखती है जो कुछ मतलब उस ग्रेडर ये मापा हुआ रहता है mm के हिसाब से, तो वो वाले सीड वो अलग करके रखते हैं। तो फिर ग्रेडिंग भी करना है। ग्रेडिंग के बाद मैडम नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि एक है पहला जो प्रोसीजर है रोस्टिंग। इसमें क्या होता है, ग्रेडिंग कर लिए, फिर उसको और भूजना है हमको, जितना है उसको थोड़ा सा तवे में रख के, आप फोटो में देख सकते हो, कढ़ाई में रख के उसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होता है, उसकी ऊपरी परत और अंदर की परत, जिसको हम कैरनाल बोलते हैं या ग्लूकन बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो रोस्टिंग मतलब उसको भूज के, मतलब फिर उसको फिर और ड्राई करो, फिर ड्राई करके क्या होता है, और वो सिकुड़ जाता है एकदम, मतलब अंदर का जो है दोनों की परत जो रहती है, इंटरनल परत, वो छूट जाती है। फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस है टेम्परिंग, मतलब वही छूटने की प्रोसेस कि दोनों लेयर अलग हो जाए। फिर उसके बाद और उसको रोस्ट करके हुए उसको डायरेक्टली टैम्प करते हैं लोग। मतलब आप देख सकते हैं दूसरे फोटो में उसके पास एक लकड़ी हथौड़ा जैसे हैं कि उसके नीचे उसी साइज का सीड आना चाहिए, तो उसके ऊपर इक्वल प्रेशर भार आते ही वो फिर डायरेक्ट पॉप में परावर्तित होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो उनका लाइवलीहुड, उनका जीवन यापन इस मखाना के ऊपर है। वही लोग ट्रेडिशनली अपना निकालते हैं, उसको ग्रेड करते हैं, मतलब जो किसी भी प्रक्रिया है, मखाना के कारण इस एरिया में जितना भी चोर है, मोन है, चोर मोन मीन्स यहाँ के लोलैंड एरिया को बोलते हैं, इधर के लोलैंड एरिया जो है उसको चोर मोन बोला जाता है। तो उसमें ये सारे बहुत सारी फैमिलीज है, वो उसके ऊपर ही डिपेंड है। ये लोग दूसरे की भी फार्म में जाते हैं, अगर क्योंकि कुछ ऐसे फार्म है, कमर्शियल फार्म है कि उनको ये सारी प्रोसीजर नहीं आती है, तो ये लोग वहां भी जाके अपना लाइवलीहुड ऑप्शन देखते हैं। वो खुद भी करते हैं या खुद भी नेचुरली वो कलेक्ट करते हैं मखाना का सीड, और खुद होके उसका पॉपिंग भी करते हैं। अब फिर आप जैसे भी पॉपिंग होता है, तब पॉपिंग होने के बाद हर टाइप का जो पॉप होता है, जैसे बड़ा पॉप है, थोड़ा सा छोटा वाला पॉप है, या कुछ टूट गया पॉप है, तो टूटा हुआ जो पॉप है उसका वो मतलब उसको पाउडर वगैरह बना लेते हैं। और जो मीडियम वाला पॉप है उसको रोस्ट जो स्नैक्स कंपनी है वो ज्यादा प्रेफर करती है, तो वहां चले जाता है। बड़ा पॉप भी है, उसको भी चला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि ग्रेडिंग सीड के वाइज भी ग्रेडिंग करते हैं, पॉप होने के बाद भी ग्रेडिंग किया जाता है। पॉप करते समय भी एकदम स्किल आदमी की ही जरूरत होती है कि उनको ही वो पॉप करने की स्किल पता रहते हैं कि किस वक्त वो टैंपिंग करना है, किस वक्त उसको प्रेशराइज करके उसको फोड़ना है। तो ये सारी चीजें हैं पॉप होने तक। इट्स वेरी लेबरियस जॉब एंड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। मैडम नेक्स्ट। हाँ देखिए, आप देख सकते हो कि
इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, हमारा एक सेंटर है सिपेट लुधियाना में, और सेंटर ऑफ मखाना, इन्होंने एक मशीन बनाई, पहली मशीन जो थी, जो पॉपिंग मशीन वाले थी कि, लेकिन इसका जो मतलब प्राइस जो है वो एकदम हाईएस्ट है, तो इसलिए वो पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन एक इनिशिएटिव था कि जितना भी लेबरेज जॉब है पॉपिंग बनाने का, ये थोड़ा सा कम हो। ये जो मशीन जो है अभी अवेलेबल है, और कोई भी एफपीओ बना के या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के तो आप इस मशीन को ले सकते हो, जो कि बहुत कारगर है पॉप बनाने के लिए। लेकिन इसका जो रेट है थोड़ा सा, मतलब पॉप बनाने का जो रेट है पर सीड, तो वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन इट्स गुड फॉर कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। और मखाना पॉपिंग मशीन अभी आप देख सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी ये अवेलेबल है, और ये सारी आप इसका प्रोक्योर करके, मतलब एक दो कंपनियां हैं जो मखाना मशीन बनाती हैं, तो इसका भी आप यूज करके, आपको खाली सीड प्रोडक्शन लेना है। सीड प्रोडक्शन के बाद आपको खाली रोस्टिंग करना है। रोस्टिंग करने के बाद ये मशीन उपयुक्त है पॉपिंग होने के लिए। फिर पैकेजिंग के लिए बहुत सारे हैं, जैसे वैक्यूम पैकेजिंग है या मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग का जो है वो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। आप पैकेजिंग के कोई भी यूनिट परचेस करके, एक मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के या कोई एनजीओ बना के या कोई एफपीओ बना के आप पैकेजिंग करके, उसको ब्रांडिंग करके, उसका न्यूट्रिशन क्वालिटी देख के आप इसको ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं कि हमने ये सारी चीजें अभी तक हो गई है। उसका न्यूट्रिशन क्वालिटी, उसका कल्टीवेशन मेथड, उसका न्यूट्रिएंट पैकेज, उसके ऊपर डिसीज, उसकी वैरायटी। अभी भी मखाना के ऊपर ऐसा चल रहा है कि जैसे कि चाइना में मखाना की वैरायटी है, लेकिन अभी चाइना में स्पाइनलेस वैरायटी, जैसे कि हमारे मखाना में स्पाइन्स है, प्रिकली स्पाइन्स बोलते हैं उसको। तो चाइना में तो उसमें एक नई वैरायटी है, तो उसमें वो मतलब उसमें स्पाइन नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी इंडिया में भी शुरू है। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइनलेस वैरायटी आ जाए। और इसमें कल्टीवेशन का थोड़ा सा, इसका ड्यूरेशन जो है लगभग 10 महीने तक का रहता है। इसका ड्यूरेशन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कम हो। इसके ऊपर भी काम चल रहा है हमारे संस्थान में। तो ये मशीन तक हो गया। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो पूरा इसका ट्रैवल है फ्रॉम कल्टीवेशन टू पॉप, तो आप लोगों ने देख ही लिया है। इसमें मतलब कितना मतलब टाइम लगता है, कौन सी वैरायटी लगती है, उसको ब्रॉडकास्टिंग कैसे करे, उसका नर्सरी मेंटेन कैसे करे, उसको ट्रांसप्लांट कब करना है, फिर उसको कलेक्ट कब करना है, स्टोरेज कब करना है, फिर उसको पॉपिंग कब करना है, आइदर ट्रेडिशनल मेथड और मशीनरी मेथड। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, अब मखाना तो जलीय पौधा है, तो हम मखाना के साथ एकीकृत जलीय कृषि भी कर सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मखाना एक फील्ड मेथड में भी हो गया, एक दूसरा भी मखाना पॉन्ड मेथड में हो गया, जिसकी गहराई 1 मीटर से ज्यादा है, उसमें हम मछली पालन भी कर सकते हैं। किंतु उसमें मछली पालन करते समय आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो ओपन स्पेस, सरफेस स्पेस जो है वो मतलब 20% होना चाहिए, 15 से 20% होना चाहिए, जिससे थोड़ा मछलियों को ऑक्सीजन मिले और जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, पानी की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और उसकी वाटर क्वालिटी थोड़ी मेंटेन रहे फॉर फिश कल्चर के लिए। तो हम फिश कल्चर जैसे कि रोहू, कटला, मिर्गल, बाकी कुछ चाइनीज कार्प है, ग्रास कार्प को छोड़ के या सिल्वर कार्प को छोड़ के बीहेड वगैरह हम इसके साथ मतलब मखाना के साथ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत यही है, जिस वक्त हमको मखाना निकालना है उसी वक्त हम मछली का भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इन बिटवीन हम कर नहीं सकते, क्योंकि बीच बीच में मखाना के पौधे रहते हैं, तो वो हार्वेस्टिंग हो नहीं पाता है। तो इस तरह हम कटला, रोहू, मिर्गल या फील्ड सिस्टम में भी कर सकते हैं, लेकिन फील्ड सिस्टम में हमको एम्बाकमेंट जो
एम्बांकमेंट मतलब जो पेरिफेरल एरिया है मखाना का, तो वो बढ़ाना पड़ेगा। पेरिफेरल एरिया जो बांध है, बांध की ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी। और उसमें मागुर और सिंघी, ये दोनों बहुत कारगर मछलियां हैं। मागुर और सिंघी, इन दोनों का भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं फील्ड मेथड में, जिसका बंध थोड़ा बड़ा हो, 1 मीटर तक या ½ मीटर तक रहा तो उसमें मागुर और सिंघी। अगर पॉन्ड मेथड में रहा तो रोहू, कटला, मेगल, ये तीनों मछलियां मखाना के साथ ले सकते हैं। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, मखाना कम फिश कल्चर में हमारे संस्थान ने दो मॉडल हैं। इसमें सेंट्रल वैकेंट स्पेस है, क्योंकि बीच वाली जगह छोड़ना या पेरिफेरल या मार्जिन वाली जगह छोड़ना है। लगभग 10 से 15 स्पेस में छोड़ना है। और पेरिफेरल सिस्टम में 1 से 1.5 मीटर डिस्टेंस छोड़ना है एम्बांकमेंट से। जो सतह है वो मछलियां यूज करे, और बीच वाला सतह है जो मखाना का पौधा करे। अगर आपकी जमीन में, जिस जमीन के डीप एरिया में है, डीप एरिया में जिसकी गहराई 1 मीटर है, तो आप वो स्पेस छोड़ के जहाँ की गहराई कम है वहां आप मखाना प्लांटेशन कर सकते हो। और ये जो मखाना प्लांटेशन है कम गहराई में बहुत अच्छे से होता है। उसका फ्रूट साइज भी बड़ा रहता है और नंबर ऑफ फ्लावरिंग भी ज्यादा रहता है। जहाँ कम गहराई है, मतलब लगभग 2 फीट गहराई रहा, और जहाँ गहराई ज्यादा है 1 मीटर, वहां मखाना का पौधा रह सकता है, लेकिन उसका फ्रूट साइज थोड़ा कम रहता है। तो हम वो वाला स्पेस जो है हम वो मछली पालन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप मखाना और मछली दोनों का भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और एकीकृत जो इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर है ये भी कर सकते हो। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। अब देख लीजिए, ये जो पूरा साइकिल है मखाना का, इसमें पूरा मैंने आपको आप देख सकते हो कि सीड डालना, उसका जर्मिनेशन, फिर उसका सैंपलिंग, उसका ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, बर्स्टिंग, सीड हार्वेस्ट, फिर प्रिपरेशन, एक पूरा चार्ट बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें ये हर महीने वाइज ये चार्ट कैसा मतलब चेंज हो रहा है। और अगर मखाना और मछली ने मतलब दोनों का भी इंटीग्रेशन करना है तो आप फिश स्पॉन मत डालिए, मतलब नहीं डाल सकते हैं। हम खाली फिश फिंगरलिंग डाल सकते हैं, क्योंकि फिश फिंगरलिंग ऑलरेडी ग्रोन कंडीशन में रहता है। और ऑलरेडी जो मखाना फील्ड है इसमें भी वाइल्ड फिशेस ज्यादातर रहती है, जैसे टिलापिया वगैरह, तो इसलिए वहां स्पॉन हो नहीं पाता है। तो फिश फिंगर इट्स गुड फॉर इंटीग्रेशन विथ मखाना। तो मैंने कुछ मछलियां जैसे कटला है, रोहू है, आइनाबस जो क्लिमिंग पर्च बोलते हैं, चन्ना है जो स्नेक हेड, मागुर है, सिंगी है, इसका हम यूज कर सकते हैं मखाना के साथ इंटीग्रेशन करते वक्त। देखिए, आपको दोनों का भी प्रोडक्शन का, जहाँ डेप्थ ज्यादा है, दोनों का भी प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। फिर लगभग 5 से 7 टन पर हेक्टर और 1.5 से 2.5 टन पर हेक्टर इतना मखाना का भी सीड हम वहां से हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फील्ड मेथड में आप खाली मखाना करोगे तो इसमें लगभग 3 टन मतलब 30 क्विंटल पर हेक्टर इतना प्रोडक्शन मिलेगा। अगर आपको मखाना भी करना है तो मखाना भी कर सकते हो, फिश करना है तो मखाना तो हम फिश भी कर सकते हो। मतलब आपकी जमीन की टोपोग्राफी देख के आप ये इंटीग्रेशन दोनों का भी कर सकते हो। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। So I think it's last. Madam, it's last, I think. Thank you everyone. So it's open for discussion. I hope this session would be very helpful for everybody. And now we are open for question answer session. And I already have some questions from chat box. So the first one is, does Makhana need organic certification? And if yes, then what is the process? Yes, madam. For organic cultivation, we have need that organic certification. But another thing is how to do this organic farming. So first of all, we need some virgin land. Means they are not contaminated with other fertilizers or flood. So it should be that land should be away from the disturbed land. So we can get easily organic certificate from government agency. So most of the people, they are now trying for organic makhana, but within that most of sorry for disturbing, sir. Hindi में अगर
हिंदी ओके, में हाँ थोड़ा। हाँ हाँ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सर्टिफिकेट है वो टीडीएस है थोड़ा, क्योंकि हम जब उसका कल्टीवेशन करते हैं तो ऑलरेडी जो हमारे जमीन है, तो ये जमीन में ऑलरेडी बहुत सारे मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स, हेवी मेटल, पेस्टिसाइड ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उस जमीन का यूज इसी तरह किया हुआ है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के पहले हमको उस फार्म जो लैंड है उसको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए, या तो वेस्टर्न कंडीशन में हो कि जिसमें एग्रीकल्चर इसके पहले ना की गई हो, और दूसरे वो लैंड 2-3 साल मतलब वो उसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्टिंग करके, या थोड़ा सा फार्म मेड मैन्यूअर है, ये सारी चीज मिला के उसमें पहले ये स्टार्ट करना पड़ता है कि नेक्स्ट जो उसके जो फ्रूट में हो या फ्लावरिंग में हो, ये सारी केमिकल कंपोजिशन ना आए। तो इसीलिए पहले लैंड प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है, और इसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑलरेडी देती है। अगर उसके पहले आपको जो कुछ सर्टिफिकेट से FSSAI से वो लेना पड़ता है, तो यही एक प्रोसीजर है। थैंक यू सर। दूसरा सवाल था कि इज इट पॉसिबल टू डू इन महाराष्ट्र एंड एमपी? क्या महाराष्ट्र और एमपी में भी मखाना खेती शुरू कर सकते हैं? पहली बात, ये एक हाइड्रोफाइट है, तो कोई भी लैंड हो उसमें पहली बात तो पानी रहना चाहिए एटलीस्ट 9 मंथ। ओके। और जो लैंड है उसमें ह्यूमिक एसिड मतलब ह्यूमिक कंडीशन में रहना, मतलब ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा से ज्यादा हो। यहाँ की जो जमीन है उसमें क्ले क्ले मटेरियल ज्यादा है, हाई ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज ज्यादा है। ऐसा ही अगर सॉइल हमारे इधर रहे, जैसे कि कुछ पार्ट है छत्तीसगढ़ में, वहाँ वाटर लॉक एरिया है, महानदी के किनारे या शिवनाथ नदी के किनारे, वहाँ हमेशा पानी रहता है, और वहाँ के जो सॉइल में थोड़ा सा क्ले परसेंटेज ज्यादा है, तो वो सॉइल सुटेबल होती है मखाना कल्टीवेशन के। अगर जहाँ ये ऐसा पोटेंशियल है, सॉइल क्ले परसेंटेज ज्यादा हो, ब्लैक हो, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा हो, और ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज ये हाई होना चाहिए, तो वही मतलब अ, ठीक ठीक रहेगा। लेकिन पानी हो पहली बात तो उतने देर तक। सर तीसरा सवाल था कि पॉपिंग मशीन का जो आपने डिस्प्ले किया था उसका कितना लगभग प्राइस रहता है? देखिए, पॉपिंग मशीन जो अभी आती है, ये पॉपिंग मशीन इसका जो प्राइस है लगभग 10 लाख से 15 लाख तक है, इसका पूरा चेन। और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है, इसलिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बोला था कोऑपरेटिव सोसाइटी या कुछ इसके थ्रू हम इसको परचेस किए तो एकदम इजीली होगा। तो मोर देन 10 लाख इसका प्राइस है पॉपिंग मशीन का, और इसकी इफिशियंसी भी थोड़ी सी कम है। इसमें थोड़ा सा अभी काम भी चल रहा है, इसीलिए लोग यहाँ पर ज्यादातर ट्रेडिशनल मेथड्स ही करते हैं। अगर पॉपिंग मशीन रहा तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादातर मतलब उसमें टाइम लगता है। जैसे एक आदमी को एक दिन में 100 किलो वो कर लेता है, तो मशीन को भी उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन वही है कि उसकी थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है मशीन फिलहाल फिलहाल की कंडीशन में। सर नीम ऑयल का आपने जैसे बताया था, तो उसका कितना हमें यूज करना होता है, कितना पीपीएम उसमें डलता है? 0.3 ppm, वो बहुत कम ही। उसमें एफिड जो है एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे रहता है, एफिड का प्रादुर्भाव मखाना के मतलब लीफ के ऊपर। मखाना का जो लीफ है एकदम जनरली 2 से 2.5 महीने के बाद आता है, वो एकदम वो थोड़ा सा लचीला रहता है वो मखाना का, तो उसमें एफिड आ जाता है। तो 0.3% नीम ऑयल मतलब परसेंटेज में लीजिए, उसका स्प्रे कर लीजिए। अदरवाइज जब हम फील्ड प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें नीम ऑयल केक भी हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें अगर ऑलरेडी उसके साथ रहा मतलब फील्ड कंडीशन करते हुए, तो उसमें उसका भी प्रादुर्भाव बहुत कम होता है, लेकिन अपन स्प्रे कर सकते हैं 0.3%। थैंक यू सो मच सर। और किसी का कोई प्रश्न हो? मेरे तरफ से था जी। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से था सर, जैसे नीम ऑयल और कहते हैं नीम को हम लोग यूज करते हैं, और हमारे अगर तालाब में ऑलरेडी पहले से मछलियां हैं तो उससे कोई दुष्प्रभाव? नहीं 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 नहीं, नीम ऑयल का हमको थोड़ा सा कम ही करना है ना। 0.3% मतलब एकदम लिटिल अमाउंट होता है, वो खाली एफिड के लिए, उनको भगाने के लिए होता है, तो उसका कुछ ऐसा प्रभाव नहीं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब बहुत सारे केमिकल्स हैं मार्केट में उपलब्ध, लेकिन वो क्या है बायो अक्यूमुलेशन या थोड़ा सा
ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है, हाँ, एक्वेटिक हाँ। ऑर्गेनिज्म के लिए भी ठीक नहीं है। तो ज्यादातर ऑर्गेनिक जी। मेड या आपका गौमूत्र है, नीम ऑयल केक है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Anybody और else? सर किसी जैसे का प्रश्न मैं हो? अभी एक नया नया किसान हूँ मखाना के लिए, और लगभग हाँ हेलो। लगभग 8 बीघा में मैं मखाने के काम कर रहा हूँ। तो पहली बार मैंने सीडलिंग परचेज किया था जगह जगह से। तो अभी जैसे हाँ आपने 2 वैरायटी बताई थी, तो वो 2 वैरायटी क्या पहचान कैसे होगी कि मैंने कौन सी वैरायटी परचेज की है? पहली बार मैंने खरीदा है। देखिए, इसमें जो है स्वर्ण वैदेही, हेलो, जी सर। स्वर्ण वैदेही एक जो वैरायटी है, जैसे वाइल्ड वैरायटी का जो पत्ता है वो बहुत छोटा होता है, पहली बात तो। और जो ये जो वैरायटी है सिलेक्टेड वैरायटी, इनका पत्ता बड़ा रहेगा और इनका वेनेशन जो है वो अलग अलग की तरफ रहेगा, मतलब जालीदार उसका वेनेशन रहेगा। जैसे मकड़िया जाल बिनती है ना, उस तरह उसका वेनेशन रहेगा, पत्तों के ऊपर वेनेशन। उसका पत्ता जो है वो बहुत बड़ा रहता है, और उसमें हम देखें ना 50 के ऊपर, 50 से लेकर 200 तक उसमें सीड रहते हैं। लेकिन जो वाइल्ड वाली है उसमें आप 30 भी मिलेंगे, कभी 30 भी, कभी 20 भी मिलेंगे। और ये जो दूसरी जी है सबौर मखाना 1, ये जो वैरायटी है, ये खाली मतलब जो एकदम ऊपरी जो प्रदेश है नॉर्थ बिहार का, जैसे पूर्णिया वगैरह, तो उसके उसका जो फूल है वो थोड़ा पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का जी होता है। और उसमें जो फ्रूट आपको जो दिखेगा ना, तो फ्रूट का हर एक जो दाना है वो आपको ऐसा अलग अलग हुए दिखेगा, तो उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ओके, वो ऑटोमेटिक जब वो ब्रॉडकास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो सीड है एकदम विद इन 1 दिन के अंदर वो थोड़ा सा नीचे नीचे की सतह में आ जाएगा। तो आप देख ही जी सकते हो कि वाइल्ड वैरायटी का फ्रूट कभी भी छोटा रहता है, पत्ता छोटा रहता है। और ये जो वैरायटीज है इनका पत्ता देखो कि बहुत बड़ा आएगा, और इसका पिट्यूल भी बड़ा, मतलब उसकी डेट भी बड़ी रहेगी, फल मतलब फल भी बड़े रहेंगे इसके। और पर फल 50 के ऊपर ही उसका सीड रहेगा, फल हर एक का। जी जी। सर जैसे पॉन्ड प्रिपरेशन करते समय तालाब, मतलब हाँ। तालाब है और लोलैंड एरिया है, तो प्रिपरेशन हम्म। करते समय मतलब किस हिसाब से हमने गोबर की खाद डालनी चाहिए? आइडियल क्या होगा गोबर की खाद डालने की एकड़ के देखिए, हिसाब से? एकड़ के हिसाब से आपका जो जितना भी एरिया है, तो उस एरिया में आप पहले देख लीजिए कि वहाँ की जो सॉइल की क्वालिटी, आप अगर क्ले परसेंटेज ज्यादा होगा, क्ले मतलब चिकनाई देख लीजिए, अगर मिट्टी में चिकनाई और थोड़ा सा ब्लैकिश कलर है ना, तो उससे आपको समझ जाएगा। और पहली बात तो आपके पास कंपोस्ट है, मतलब कंपोस्ट फर्टिलाइजर, मतलब वो पाउडर वगैरह है, तो उसका जी जी लगभग 2 टन, 2 से 3 टन, मतलब पर हेक्टर, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर में 2 से 3 हेक्टर का जी वो लगेगा पहले इसमें। फिर नेक्स्ट टाइम आप जैसे आप नेक्स्ट टाइम उसका स्लरी बना के, मतलब जो जी कंपोस्ट जी का स्लरी बना के, कि जब जी फ्लावरिंग आने के पहले उसको भी स्प्रेड करना पड़ता है। ओके, क्योंकि फ्लावरिंग आने के समय जी उसमें सॉइल और कंडीशनिंग होनी चाहिए, तो उसमें स्लरी बना के जी। उसको भी स्प्रेड कर सकते हाँ हैं। हाँ, जी जी। और सर जैसे जितना ज्यादा हो, खेत जो है। जितना ज्यादा हो, जी मतलब 2 टन से भी ज्यादा रहा आपके पास गोबर, वो भी हाँ उपयुक्त है, जी क्योंकि जितना ह्यूमस रहे, देखिए मखाना जितना आपको देगा, है ना, उतना जी पत्ता भी बड़ा होगा, और वो पत्ता गल के आपके ही मिट्टी में जाएगा, ठीक है। तो जी जी वही रिसाइकल होना है उसको, इसलिए जितना गोबर जी खाद, जितना कंपोस्ट हो उतना अच्छा है। जी जी जी। क्योंकि जैसे नया तालाब मतलब मैंने बनाया है, तो ऊपर का मिट्टी सारा हम्म। खोद के बंद पे चला गया, मतलब टॉप सॉइल उसका यूज हो गया है। तो ऐसे हम्म। कंडीशन में गोबर का खाद ज्यादा डालना पड़ेगा हमको मतलब? अब देखिए, पहली बात तो कभी भी हम जब आ, तालाब वगैरह खुदाते हैं ना, पहली बात तो जी ऊपरी जो सतह जो रहती है ना मिट्टी की ऊपरी सतह, इसको जी बनने के लिए सालों लग जाते हैं, ठीक है। और जी उसी मिट्टी का हम यूज करते हैं इम्बाक में, मतलब आजू बाजू यूज कर लेते हैं। तो हम दूसरी ऐसी जमीन देखें कि उसकी ऊपरी सतह की मिट्टी की परत जो है ना, ऊपर का, ओके, जी थोड़ा सा जी 2 इंच वाली जमीन, 2 से 3 इंच वाली जमीन, ऊपरी परत जो है वो अपने जमीन में, मतलब मतलब अपने पॉन्ड में डालना है उसको, कि जो जी जी सॉइल हॉरिजॉन है वो स्टेबल रहे, क्योंकि सॉइल का बहुत बड़ा रोल होता है, मखाना हो या मछली हो,
हर चीज में जी। अगर क्योंकि आप डिग करोगे तो वो नया सॉइल रहेगा, उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा बाहर वाली जो मिट्टी है ना, वो ला के उसमें स्प्रेड कर दीजिए, फिर उसके बाद गोबर वगैरह डाल सकते हैं। जी सर, जी सर। So we can go to the last question, अगर किसी का लास्ट सवाल है कोई तो। सर एक सवाल है, चैट बॉक्स में सीड ट्रीटमेंट के लिए S9 का यूज कर सकते हैं क्या? किसका? S9 कल्चर। स्माइल कल्चर। S9। यस 9। ना 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 ना, उतना मतलब देखिए उसमें इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका हार्ड कोट होने की वजह से आप कोई भी सीड ट्रीटमेंट करोगे तो उतना कुछ मतलब यूज नहीं होता है। लेकिन जितने भी मैंने अभी बताया था, नीम ऑयल का है, और दूसरा जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कंपोस्ट मैन्योर है, उसका यूज किया जाता है। ज्यादातर बाहरी जो केमिकल से उसका यूज नहीं करना है। नहीं सर, S9 कल्चर भी ऑर्गेनिक ही है, जैविक कल्चर है। हाँ जी। नहीं, अभी तो फिलहाल तो मैं मखाना के साथ इससे देखा नहीं हूँ, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आपसे थोड़ा सा करेंगे उसके बाद। गाय की गोबर के खाद से बनने जा रहे हैं सर वो काउडक से ही बनाया जाता है S9 कल्चर। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ इसके ऊपर क्या है। इसमें ऑर्गेनिक नहीं, और इसको ऑर्गेनिक कार्बन। So as we have limited time, I would now like to bring the session to its end. A heartful okay, thanks madam. to our guest speakers, Raut sir, who has shared his valuable knowledge and experience with us. Thanks to all the participants, and also would like to thank my team members for facilitating this session. In the end, I would like to thank everyone for joining us. So we all can open our cameras so that we can take a photograph. I request everyone. So thank you, Jal Jeevika, so give me this platform, virtual platform, to interact with some farmers and some interested progressive farmers. So thank you very much. Thank you, sir. And yeah. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। कुछ पीओपी होगा तो वो शेयर कर दीजिएगा ना, कैसे करते हैं पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। हाँ बिल्कुल जी। रिक्वेस्टिंग जल जीविका टीम टू प्लीज शेयर विद अस आल्सो। वी आर वर्किंग इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, हाँ यस सर। हाँ सर, वहाँ पे हमारा काम चल रहा है अभी, पूर्णिया और 4 डिस्ट्रिक्ट है। तो मेनली वहाँ पे फिशरीज एंड मखाना के ऊपर हम थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं। सो आपकी हेल्प लगेगी, आपके इंस्टीट्यूट की हेल्प लगेगी। Okay, then we can stop here. Thank you, sir. For knowing more about Jal Jeevika, you can follow us on Instagram, LinkedIn, and we also have some free content on YouTube. And also, we will soon upload this video, this whole recorded session on YouTube, and share with you all. Thank you, everyone.